Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing well. So in today's video, we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 8, that is motion. I would like to inform you that we have uploaded many videos of the same chapter, that is motion chapter. If you have not watched those videos, then please go to our channel, watch all those videos before watching this video, because if the basics will be clear, only then you can understand the concept that will be discussed in the same video. Otherwise, if you are just trying to learn the chapter from in between, then nothing will be clear to you. So I would like to request you that please watch all those parts which are available in the playlist, and after watching all those 10 parts, you can watch, this is the part number 11, right? So after watching those videos, if you are watching this video, only then everything is very clear to you, right? So let's start our video without wasting the time. Today's topic is equations of motion. In our last video, we have discussed about the calculation that can be made from VT graph, and in today's video, we are going to deal about the equation of motion, or sometimes they are also called as kinematic equations. Okay. So what is the equation of motion? Equation, I am going to tell you, it is nothing, it is the relation between two quantities, or you can say it is the relation among the many quantities. Okay, that is called as equation. Now we are dealing with the term equations of motion. So that means it is the relationship among the various parameter of motion, like displacement, velocity, acceleration, time. Okay, so if we are creating a relation between if we are creating a relation among displacement, velocity, acceleration and time, then these relations are called as equations of motion. Okay, so equations of motion क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये जस्ट एक रिलेशन होता है मोशन के पैरामीटर्स के बीच में. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इन पैरामीटर्स में रिलेशन क्रिएट करें तो जो रिलेशन हमें ऑब्टेन होगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशंस. तो ओके, इज इट क्लियर? एंड दीज इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज काइनेमेटिक इक्वेशंस. क्या बोलते हैं इनको? हम काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, राइट? एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, देयर आर हाउ मेनी सच रिलेशन are possible. So there are three equations or three relations are possible that are given over here. I have written over here. So first one is, this is called as first equation of motion, that is V equals to U plus AT, where symbol have their usual meaning. What is the meaning of V? V is representing the final velocity. What is the meaning of U? U is representing initial velocity, A represents acceleration, T represents time. I am telling you each and meaning of each and every symbol over here. Okay. Second equation is S equals to UT plus half AT square. This is called as second equation of motion, right? And third we are having V square minus U square equals to 2AS. S is what? S is representing the displacement over here. So these are three equations of motion that you will be discussing in your chapter. Okay, these are the three equations that are according to your syllabus, that lie in your syllabus. Okay, and now let's deal with the symbols. What are the meaning of the symbols we are using in these equations? So four kind of symbols we have used. V we have used, U we have used, A we have used, T we have used. So first is, let's recall the meaning of the symbols. U represents U stands for initial velocity. Okay, V stands for final velocity, S is representing, S stands for distance or displacement, right? And A represents acceleration over here. And one thing I have missed, that is T. T is very common. T represents time. Okay, so that's why I am writing here, T represents time. So T represents time in these equation. Is it clear? So T is very important, time is very important, because motion of any object depends on time. So is it clear? Okay, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन. मैंने आपको बताया था, अभी हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, और कैसे उनको हम डिराइव करने वाले हैं, और कितनी इक्वेशंस होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, कितनी होती हैं, वो आप डिस्कस करने वाले हैं, राइट?
सो अभी क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई है. डेफिनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी ऑफ द डेफिनेशन. They are not going to ask about the definition of the equations of motion. They will simply give you the question. Either they will be asking the derivation of the equation of motion. या तो वो आपसे derivation पूछेंगे या तो वो आपसे numericals पूछेंगे. equation की definitions कभी नहीं पूछते, कि आपसे कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि define equation of motion. No, not at all. This question has never came in the examination before, so that's why don't get worried about the equations. Just try to understand the relation among the various parameter of motion like velocity, displacement, time and acceleration are called as equations of motion. तो जो भी हमारा मोशन के पैरामीटर्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं. और इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं, राइट. दीज इक्वेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेमेटिक इक्वेशंस, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी कितनी इक्वेशन होती हैं ऐसी, तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर पॉसिबल. सो देयर आर कॉमनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अवेलेबल इन योर सिलेबस. You need to read about them. That is first equation. First is v equals to u plus at. This relation or this equation is called as first equation of motion. Second is s equals to ut plus half at square. This is called as second equation of motion, right? And third equation is what, v square minus u square equals to 2as. Okay, these are the 3 equations. अभी सिम्बल्स की मीनिंग मैंने आपको बताया था, फिर देख लेते हैं एक बारी. जो हमारे सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं इक्वेशंस में, क्या क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो. u किसको रिप्रेजेंट करता है, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एंड v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, एंड s रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. s दोनों को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को भी या फिर डिस्प्लेसमेंट को भी. अभी देखेंगे हम, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो. a equals to acceleration, okay, acceleration is very common, and t I have missed over here, that's why I am writing at this place. So t equals to time. Is it clear? So please take the screenshot. This is all about of this concept. Please take the screenshot. Either you can pause the video to make a note of it. So just wait, okay, write it down. So I think you have taken the screenshot of the previous concept, that is equations of motion. Now we are going to discuss the another concept, that is derivation of equations of motion by graphical method. That derivation means that how that equations of motion came about, कहाँ से originate हुई हैं, कैसे उनको prove किया गया है, वो सारा कुछ discuss करने वाले हैं कि कैसे जो relation है वो कैसे create हुआ है. Okay, in this we are going to discuss that how the relation, that is how the equation got created. Okay. So for this we are using the graphical method. There are many methods. There are 3 methods. First one is analytical method, second one is graphical method, and third one is calculus method. And the calculus method is not going to be discussed in 9th standard. You will be able to understand the calculus method in the 11th standard. Okay, so only 2 methods are in your syllabus, that is graphical method and one is analytical method. So after discussing the graphical method, we are going to discuss about, you know, analytical method. I will upload a separate video for that. So till now we focused on the graphical method, because we have discussed many things about graph. So that's why it is convenient to take the help of the graph to prove all these 3 equations of motion. अभी हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इनको प्रूव करने वाले हैं कि जो भी हमारी 3 इक्वेशंस थी वो डराइव कैसे हुई, वो कैसे क्रिएट हुई थी रिलेशंस, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो सब. इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ग्राफ चाहिए, और कौन सा ग्राफ चाहिए, VT ग्राफ चाहिए, राइट. सो समथिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. वी हैव ड्रॉन अ ग्राफ. ओके, दिस इज द ग्राफ. On the special condition I have told you, in this graph the object is moving at a certain speed, initial speed, that is u, and the speed of the object or the velocity of the object is increasing continuously, and after time t the velocity becomes v. Okay, so I have written all these things on the board. Let us consider an object is moving with initial velocity u, and after time t displacement covered is s, and the final velocity is also v. अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है,
और t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी हो रही है, v हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ये जो स्लोपिंग लाइन है, स्लोपिंग अपवर्ड लाइन है, इसका मतलब होता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर ग्राफ ऐसा कहीं पे स्लोपिंग अपवर्ड लाइन आ रही है, दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। तो इस वाले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका पहले ही u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई है, v, और इस t ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है उसने, इन दिस t टाइम द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज s। कितना ट्रेवल किया है, s, मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। अभी हम क्या डिराइव करने वाले हैं, राइट नाउ वी नीड टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन। Okay, so what is first equation? V equals to u plus at. Now you must understand how this equation is derived, how this formula came about. Now in this first equation we are calculating the acceleration. हमें क्या करना है, you must memorize or you must remember whenever we are deriving the first equation then you need to find out the acceleration from this graph. अभी क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ से हम acceleration find out करने वाले हैं। देखते हैं कितना आएगा acceleration. So for first equation, acceleration equals to what I have told you. Acceleration, if you are going to calculate the acceleration from VT graph, then what you will need to calculate? You will need to calculate the slope of the line. The slope of the line. अभी यहाँ पे sloping line है ये AB, तो अभी हम इसका slope calculate करेंगे। Slope of line AB. Slope of line AB. Okay. Slope of line AB. So acceleration is represented by the letter small a. And how we can calculate the slope? I have told you, slope is just calculated by dividing the value of y intercept to the x intercept. अभी देखते हैं y वाली जो वैल्यू है कितनी है, v माइनस यू। ओके, ये y में वैल्यू है v माइनस यू और टाइम x में कितनी वैल्यू है, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन है स्लोपिंग, तो इसमें y में कितनी वैल्यू आ रही है, v माइनस यू। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, हमने ये माइनस कर दिया, v माइनस यू ये आ गया। ओके, ये y वैल्यू है और ये x वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एक 80 हो जाएगा, इसको क्रॉस रीअरेंज कर लिया हमने, v माइनस यू। t को हमने यहाँ डिवाइड में था, यहाँ ट्रांसफर कर दिया a के मल्टीप्लिकेशन में, a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवीजन में था, इसको हमने सिंपली a के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अभी आप क्या करोगे, u जो है इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा v इक्वल्स टू, u बिल्कुल v जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये u ही है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस 80, जस्ट वेट, v इक्वल्स टू u प्लस 80। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हाउ वी हैव डिराइव्ड द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर? फिर से देख लेते हैं, ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको बार बार। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही u स्पीड से या u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये u होगा यहाँ से, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो u है, और फिर यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v। तो ये जो वेलोसिटी बचेगी यहाँ से यहाँ तक वो कितना बचेगा, v माइनस यू, राइट। इसलिए मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट पेन यूज़ किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका v माइनस यू है, ये टोटल v है, ये u है, तो ये कितना बचेगा, v माइनस यू, और ये टाइम कितना है, t। अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था, y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो स्लोप मिल जाता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये लाइन है ए बी, इसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, y वाली वैल्यू कौन सी है, v माइनस यू, इसको डिवाइड कर देंगे x वाली वैल्यू से। x में कितनी वैल्यू है, t, उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये t डिवीजन में था, इसको हमने ट्रांसफर किया मल्टीप्लिकेशन में a के साथ में, तो at इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया। u को उधर शिफ्ट किया at के साइड में, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, u प्लस at। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज बीइंग डिराइव्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए। अभी ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट इक्वेशन जब भी डिराइव करनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको ये माइंड में मेमोराइज करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। जैसे ही आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ की हेल्प से।
स्लोप यूज़ करेंगे, ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। y में कितनी वैल्यू है v माइनस यू, और x में कितनी वैल्यू है t, उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से t डिवीजन में था तो उसको a के साथ में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, at इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया। u को भी at की साइड ही ट्रांसफर कर लिया हमने, तो ये माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस at। दिस इज हाउ द फर्स्ट इक्वेशन केम अबाउट। कैसे फर्स्ट इक्वेशन डराइव हुई है, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। जल्दी से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। Now we need to derive the second equation, and what was the second equation? Second equation is s equals to ut plus half at square. Now we are going to derive this one, that is how this equation is came about, how this was originated, कैसे originate हुआ था, कैसे derive हुआ था, relation चेक करते हैं अभी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, in this case you need to calculate the displacement। okay? इसमें यहाँ पे क्या displacement आ रहा है, तो displacement calculate करना पड़ेगा, and displacement okay, and in the previous video I have told you how can you calculate the displacement by using the VT graph. Is it very clear? कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको चेक करना है कि VT ग्राफ में कौन सा फिगर इंक्लूड हो रहा है। So if you are going to calculate the displacement, then you must understand whichever is the figure is constructed or under the VT graph. Okay, so the figure enclosed is just like a trapezium. I have told you earlier also, if you have not watched the previous video, then please go to the playlist, and the third video and the part number 10 is available. In that I have discussed this thing very clearly. This is a trapezium like structure. Just wait. This is how trapezium look like. Okay, in trapezium there are two parallel sides and there are two non-parallel sides. So I have told you these are parallel sides, these are parallel sides, and these are non-parallel sides. Okay, and there is a distance between them. This is the distance between them. So I have told you how can you calculate the displacement, by calculating the area of the figure enclosed under VT graph. VT graph में जो भी फिगर आपका enclose हो रहा होगा उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं अभी। ओके, सो एरिया, जस्ट वेट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब ये ट्रेपेजियम है OABC, एंड लिसन वन थिंग, in this part, in this second equation, we are calculating the area of trapezium not directly by the formula, just by splitting the figure. अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होता है आपको। द फॉर्मूला इज 1/2 sum of parallel side into perpendicular distance between them. That is not applicable here. We are not going to use that formula. We will be going to split this फिगर। अभी हम क्या करेंगे, इस फिगर को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है ये कुछ आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उसको हम फिगर 1 से स्प्लिट करेंगे और ये फिगर 2 हो जाएगा। दो फिगर्स हमने स्प्लिट कर लिए। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप स्प्लिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट जब आप सेकेंड इक्वेशन डराइव करोगे तो आपको स्प्लिट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कर देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1। अगर आपने पार्ट नंबर 9 नहीं देखा या 10 नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें सारा कुछ मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2। अभी यहाँ पे आपको पता है ये फर्स्ट वाला जो फिगर है वो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिख रहा है। कैसा है, रेक्टेंगल। जब हम ट्रेपेजियम को स्प्लिट करते हैं तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल मिलता है आपको। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ triangle. Okay, so now as you know how we can calculate the area of rectangle. Area of rectangle is calculated just by multiplying length to the breadth. Length को आप breadth से multiply कर दोगे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो फॉर्मूला, length into breadth, length into breadth। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, length into, यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इस जगह length into breadth। और इसका एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस। अभी क्या करने वाले हैं हम, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं लेंथ कितनी है इसके रेक्टेंगल की, ये है u। ओके, या फिर आप t बोल सकते हो। लेंथ कितनी है t, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है u। जस्ट वेट, लेंथ है आपके t और ब्रेड्थ है u, तो ut हो गया प्लस 1/2। अभी देखते हैं इस, अभी ट्राइंगल का बेस कितना है, ट्राइंगल का बेस कितना है t, और हाइट कितना है ट्राइंगल का v माइनस u। कितना है v माइनस u। ओके, सो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्रेपेजियम को हमने स्प्लिट किया है 2 फिगर्स में, एक रेक्टेंगल है, फर्स्ट फिगर आपका, सेकंड वाला ट्राइंगल है। मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है एरिया फिगर 1 प्लस एरिया फिगर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला मेंशन किया है मैंने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है 1/2 b इंटू h। अभी देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है, t है, आप नीचे भी मेंशन कर सकते हो। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो t है, और ब्रेड्थ कितनी है, ये है आपका u। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, t इंटू u कर दिया। और 1/2 बेस कितना है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का बेस ये कितना है t, ठीक है, t हो गया। और इसकी हाइट कितनी है ट्राइंगल की, ये वाली हाइट v माइनस u मेंशन कर दिया। अभी आप देखो कहीं भी इसमें v नहीं आ रहा है इस वाली क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, v को रिप्लेस कर देंगे। ओके, दैट मीन्स हम v को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। v इक्वल्स टू क्या था, u प्लस ए टी था। कितना था, u प्लस ए टी। देखो इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, v इक्वल्स टू हो जाएगा u t प्लस हाफ, यहाँ पे t है, और ये वाला जो है v, इसको रिप्लेस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, u प्लस ए टी हो जाएगा, और माइनस u हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सिंपल आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा आई थिंक, देख लेते हैं अभी एक बार फिर से, है ना। चलिए, अभी हमें क्या करना था, सेकंड इक्वेशन डेराइव करना था। इन दिस वी नीड टू डेराइव द सेकंड इक्वेशन। डोंट गेट वरीड अबाउट इट, बहुत इजी है ये। एक बार इसको आप देखेंगे, एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार वीडियो को देखिए, 2-3 टाइम्स देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। मैंने जिस डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वीटी ग्राफ से, आई हैव टोल्ड यू। आपको क्या करना है, वीटी ग्राफ में आपको जो भी फिगर इंक्लोज हो रहा होगा उसका एरिया चाहिए। तो उसमें कौन सा फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ये पूरा फिगर बन रहा है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये मैंने आपको मेंशन करके भी दिखाया है, ये वाली पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, वो हमने क्यों अप्लाई नहीं किया है, वो थर्ड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, यहाँ पे स्प्लिट किया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी ये फर्स्ट वाला जो फिगर है वो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसलिए रेक्टेंगल मेंशन किया है। सेकंड वाला जो फिगर है वो आपका ट्राइंगल है, इसलिए मैंने ट्राइंगल मेंशन किया है। साथ साथ में मैंने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सर ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ किया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इनके वैल्यूज़ को पुट कीजिए। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल की लेंथ है t, यहाँ पे पुट कर दी मैंने। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ कितनी है u मेंशन कर दिया मैंने। 1/2 बेस कितना है ट्राइंगल का, t है, t पुट कर दिया। हाइट कितनी है इसके ट्राइंगल की, ये जस्ट v माइनस यू, यहाँ तक हाइट है ना, तो ये v माइनस यू हाइट है, वो पुट कर दी। अब आप देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी v नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें v को एलिमिनेट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जहाँ v है वहाँ u प्लस ए टी पुट करेंगे, और माइनस u है, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, ए टी की t से मल्टीप्लाई होगी तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू क्या बनेगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर। ये सेकंड इक्वेशन था आपका, इसको रिवाइज नोट डाउन कर लीजिए।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। सो प्लीज़ रिकॉल ऑल दोज थिंग्स वेरी क्लियरली। आराम से देखिए इस वीडियो को, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। ओके, पहले 9th पार्ट नंबर 10 देखिएगा, उसके बाद ये वाला देखेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए कॉपी में। Okay, I think you have taken the screenshot of the second equation, proof of second equation. Now we need to discuss about the third equation. Now we are going to prove the third equation, how the third equation is derived. देखते हैं कैसे derive होता है, बहुत easy है। थर्ड इक्वेशन में भी क्या करना है आपको, ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो इन दिस you need to just find out the displacement. What is the key point? You need to find out the displacement. And what was the key point in the second equation? Same, the displacement was we have find out the displacement, but we have split this figure into 2 parts. And in this third equation we are not going to split, we are just going to use the direct formula of the trapezium. अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा, बहुत ईजी है। सो अभी हमें इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी वीटी ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो भी फिगर इंक्लोज हो रहा होगा ग्राफ के अंडर में उसको हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, मैंने आपको बताया भी था, ये ट्रेपेजियम है OABC, ये ट्रेपेजियम है, मैंने आपको बना भी रखा है, ये सेपरेट फिगर भी ड्रॉ कर रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लीजिएगा कॉपी में साथ साथ में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, राइट। अभी ट्रेपेजियम का एरिया आप कैसे यूज़ करने वाले हैं, लास्ट हमने एक सेकेंड इक्वेशन में उसको स्प्लिट किया था, अभी स्प्लिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, or you can say distance between them, both are same. This is the figure, this is the area of trapezium. यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, सिंपल area of trapezium, just wait, area of trapezium, just wait, area of trapezium क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट सिंपल फॉर्मूला है आपका, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैंने बॉक्स में इसलिए किया है जैसे कि आपको फॉर्मूला अगर मेमोराइज नहीं है तो फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ को, सॉरी 1/2 भी होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक u है और एक आपका v है, एक u है और एक v है, 2 पैरेलल साइड्स हैं, दोनों को क्या करना है, सम करना है, प्लस कर दीजिए आप, सही ठीक है, ये हो जाएगा u प्लस v, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मैंने आपको बताया, ये है डिस्टेंस, कितना है t, ये डिस्टेंस विजिबल है, कितना डिस्टेंस है t। ओके, नाउ लेट्स चेक इन द थर्ड इक्वेशन, इज देयर एनी एक्सप्रेशन ऑफ t, कहीं पर भी t का सिंबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट दिस t। अभी इस t को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताया था, क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था a इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ से अगर आप t कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है, उसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जस्ट वेट, अभी मैंने क्या बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, देन एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रेपेजियम का फिगर है, दोनों अभी वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड हैं इसमें, एक u है और एक v है, दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये t, ये मेंशन किया हुआ है मैंने, t डिस्टेंस है तो t से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आपको दिख रहा होगा थर्ड इक्वेशन में कहीं पे भी t का सिंबल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें t एलिमिनेट करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना होता है, v माइनस यू अपॉन a, इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए ये हो जाएगा सिंपल, इधर से पुट कर देते हैं थोड़ा सा, s इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा u प्लस v, और ये हो जाएगा आपका t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू
अपॉन ए। यहाँ पे v माइनस यू है, यहाँ u, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस है, यहाँ u प्लस बी है, यहाँ v माइनस यू है। चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू 1/2a, और ये इसको कर देते हैं v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू। राइट, हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है जिससे कि एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होगा देखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में या क्लास 6 में, इंटू a माइनस बी। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी वी आर यूजिंग, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे v प्लस यू है, v माइनस यू है, तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये s इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2a, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम, सिंपल है, ये 2a को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये 2a आया है डिनोमिनेटर में, इसको s की साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। लेट्स रिकॉल दिस थर्ड इक्वेशन वंस अगेन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हो सकता है आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जब भी आप डिराइव करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स स्लोप कैलकुलेट करना है। ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, वहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इस फिगर का, ये जो फिगर है ट्रेपेजियम, बट कैसे करना है, स्प्लिट करके, रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में स्प्लिट करेंगे तब करेंगे। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ये है आपका फॉर्मूला, मैंने मेंशन किया हुआ है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये परपेंडिकुलर का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। अभी 1/2 ये आपकी पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम है, एक ये साइड है पैरेलल u और एक ये साइड है v, राइट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये u प्लस v कर दिया हमने, इंटू t कर दिया। अभी मैंने आपको बताया t नहीं दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन में कहीं भी, यहाँ कहीं t विजिबल नहीं है, तो t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हेल्प लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। a इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v माइनस यू अपॉन a। इसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे t था वहाँ पे पुट करेंगे। पुट कर दिया हमने t के प्लेस पे। अभी 1 अपॉन यहाँ पे ये a मैंने साइड में ले लिया 2 के साथ में, ये हो गया v प्लस ये u प्लस v है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, v प्लस यू, क्योंकि जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप किसी भी टर्म को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे v माइनस यू, क्योंकि ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो सिमिलर टर्म्स को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1/2 ये फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट टर्म v है, v का स्क्वायर कर दिया, माइनस u का स्क्वायर कर दिया, ये 2a है अपॉन में, कुछ नहीं करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, 2a को s के साथ में ट्रांसफर कर दिया, 2as हो गया, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अभी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्लेस कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी। तो हमने ये मेंशन कर दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज वॉज योर प्रूफ ऑफ द थर्ड इक्वेशन। प्लीज मेक द पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट, आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आपको जो सुटेबल लगता है वीडियो पॉज कर दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको इजी लगता है। So I think you have taken the screenshot. So students, this is all about your video, today's video. If you like this video, then please hit the like button. If you are watching the video for very first time on our channel, then please
subscribe to our channel and also press the bell icon and do all, so that whenever we are uploading a new video you will get notification for that. And I would like to request you, please share this video as much as possible, because we are trying to provide you free of cost content. So most of the students who are not accessible to this modern education, so please share this video on WhatsApp, on Facebook, so that each and every student will be able to take the benefit of this video. So, and once again, thank you so much for watching this complete video. Thank you so much, all of you.